Yes, hello students. Today we will discuss the email. You know that this is very important one, and it will surely come in 11th and 12th board also. Okay, so why we write email? Nowadays nobody is writing the previous kind of letters that are formal or informal letter. Everybody is writing letters via their mobile phones or laptop. You know that this is very convenient also because it is very handy. We have a mobile phone in our hands always, and obviously it is the fastest means, because as soon as you click the button and it will be received by the person to whom you are sending it. So it is the quickest or fastest, and apart from that it is very cheap also. Sending a letter, writing a letter, and taking stamps and all, giving money to somebody else, it is not part of our these days life. So we just do it because it is very cheap and very comfortable for us also. Okay, and instead of writing the traditional letter, people are opting for this email. So we have already discussed in our previous classes that letter are of formal and informal. You must be knowing that formal is for the outsiders, and informal letters we write to the family, friends. Okay, so here I am discussing with you the format of the email writing. It is just like the letter which you have already done in your previous classes. Just the portion which is on the topmost part, you can see that the address, that portion is somewhat changed. Apart from that, everything else is same. So first of all we will write the from. Okay, from means ki, it means that my address, home, the person who is sending the email, who is writing the email. Okay, sender's address. So in this we will not write that address ki house number and locality and city. No, we will write the address means email address. Okay, and to the receiver's address, whom is supposed to receive this letter. Apart from that, you have seen that CC और BCC is there, कि अगर हमें एक साथ कई लोगों को लेटर भेजना है. सपोज आई एम सेंडिंग email to all of my students, okay, in class. So I will type all their addresses. Suppose there is a notice regarding fees. Okay, so I have to send to 20 students of my class. So I will write the email address of each and everyone, and I will write the letter only once, and it will be sent to each and everyone simultaneously. ओके, तो एक से ज़्यादा को भेजना है तो हम लोग सबका उसके बाद एड्रेस लिखते जाते हैं, ईमेल एड्रेस. बट हेयर आई एम सेंडिंग only to one person, so I will write the receiver's address in the to box. It will be good if you write these both addresses in a box. Okay, apart from that, the third line is date. Automatically in your mobile the date will be it is taken up by the mobile only, but हम लोग अपने format में, exam में, notebook में, we have to write the date. Okay, suppose it is written 6 December 2016. That's it. After that, the most important thing which every examiner eyes are there on that portion, that is subject. Subject is why you are writing. You should give a clue कि इस लेटर में कंटेंट्स क्या है, किस वजह से आप लिख रहे हो. तो यू शुड से दैट clue or the idea regarding what the email is all about. So here it is. Okay, I will give you example later on. After that we leave a single line, and then we can add, if आप इनफॉर्मल लिख रहे हो अपने फ्रेंड्स को, तो आप सिंपली डियर लिख सकते हो, या हाँ डियर, दैट विल बी गुड. ओके, या रिस्पेक्टेड, वॉट एवर, अगर कोई आपसे बड़ा है तो. And for the formal letter it is generally said that कि you should write dear or respected. Okay, बाहर वालों के लिए लिखना ज़रूरी है आपको. Okay, or you can simply write sir or madam, that is salutation. It is also very important. तो अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, just write sir या फिर madam अगर आप जानते हो तो. Okay,
आफ्टर दैट द बॉडी। और आपको पता है कि ईमेल वगैरह ज़्यादा लंबा हम लोग को खींचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इट शुड बी टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ कि हु आर यू, और सब्जेक्ट मैटर लिखो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वाई यू आर राइटिंग, टेल द डिटेल्स, एंड देन कि थैंक्स फॉर योर कंसर्न और वॉट एवर जो भी उसमें है। लास्ट में कंक्लूजन की भी एक लाइन दो, तो एक लाइन में इंट्रोडक्शन दिया, एक लाइन में कंक्लूजन, एंड बीच का सब्जेक्ट मैटर होगा जो भी आपका टॉपिक होगा। वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यू कैन राइट रिगार्ड्स या थैंकिंग यू। ओके, और अगर आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो आप सिर्फ लव लिखो, लव, और फिर अपना नाम लिखो। अब इसमें यू कैन सी दैट कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि आपको किस चीज़ के लिए लेटर लिखना, फॉर व्हाट यू आर राइटिंग दिस ईमेल। सो वॉट एवर रीज़न इज़ गिवन कि आपको इसकी इंक्वायरी करनी है या किसी को आपको कुछ डिस्क्राइब करना है या कंप्लेन करनी है, तो एवरीथिंग इज़ रिटन, यू जस्ट राइट इन द सब्जेक्ट पोर्शन। सब्जेक्ट जो होगा वो हम लोग सोचेंगे हमेशा कि इट शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, उसको शॉर्ट में ही लिखना है, उसको लंबा नहीं लिखना है। एंड उसकी ज़रूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस हो। ओके, पूरा सेंटेंस ग्रामर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम फ्रेज फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट करके। और मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक कि अपना एड्रेस, तो आप ईमेल एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको अपना नहीं लिखना तो आप कोई भी ऐसे फेक कुछ भी आप बना के लिख सकते हो। और किसको आपको लेटर भेजना है, इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। आपको उसमें ईमेल एड्रेस दी रहेगी। इफ़ इट इज़ नॉट रिटन देन ऑल्सो इट्स ओके। सपोज आई गिव द क्वेश्चन ऑन दैट कि हमें बालाजी नमकीन को लेटर लिखना है कि आपके पैकेट्स बहुत स्मेल आ रही थी और इट वॉज आउटडेटेड और वॉट एवर, ठीक है। हम तो उसमें हम एड्रेस का लिख सकते हैं, हम खुद से क्रिएट कर देते हैं कि बालाजी namkeens@gmail.com, तो वी कैन क्रिएट ऑल्सो ना। So you can create by yourself what is written in the question also. So most of the thing you will get in the question itself. Okay, now here is the question. Raj went to an adventure camp that included activities like trekking, rafting, rock climbing, etc. Write an email as Raj describing the activities to a friend. So here Raj is writing an email to a friend. Okay, so what we will write from, कौन है, राज, राज इज़ राइटिंग, तो राज अपना ईमेल कुछ भी आप क्रिएट कर लो। फिर ABC, आप यहाँ पे ABC ना लिखो, आपका फ्रेंड है रोहित, तो रोहित @gmail.com। देन डेट, देन सब्जेक्ट इन्जॉयमेंट एट एडवेंचर कैम्प, और लाइफ फुलफिलिंग एडवेंचर कैम्प, और अनफॉरगेटेबल एडवेंचर कैम्प, या कुछ भी आप अपना अच्छे से सब्जेक्ट लिखो। और देखो इसमें भी सब्जेक्ट कोई पूरा सेंटेंस नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रेज। अच्छा लगता है कि हाँ एक टॉपिक दिए कि मैं ये डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आफ्टर द डियर फ्रेंड ना लिख करके वी राइट जनरली द नाम, जैसे मैंने यहाँ पे बोला रोहित सपोज, तो डियर रोहित। ओके, हम लोग उसका हाल चाल पूछेंगे, हाउ आर यू, एंड माई एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड आई वेंट टू द कैंप विथ माई फ्रेंड्स, कुछ भी। यू कैन राइट दिस बाय योर सेल्फ ओनली। सी दिस इज़ टू लॉन्ग। तो जनरली जो हम लोग इनफॉर्मल होता है तो उसमें होता है कि वी यूज़ टू गिव आवर ओन होल लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट, वॉट वॉज देयर, और सबका हाल चाल पूछना, अपना हाल चाल देना, तो उसमें वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ओके, एंड जनरली limit is given in the question, so you have to go for that also. Okay, in this, see last paragraph, I want to feel this type of enjoyment every year, so I decided to join this camp every year. Please let me know if you want to come with me. I am waiting for your reply. और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, कन्वे माई रिगार्ड्स एंड लव टू अंकल एंड आंट वट एवर, एंड रिगार्ड्स राज। ओके, जनरली ये इनफॉर्मल है तो आपने राज लिखा, अदरवाइज़ हम लोग फुल नेम लिखते हैं। और इसमें क्वेश्चन में ही नाम सिर्फ राज लिखा है, इसीलिए हम राज लिख रहे हैं। अगर नाम नहीं दिया होता तो वी जनरली राइट फर्स्ट नेम इन द इनफॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर्स में हम अपना फुल नेम लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर वन क्वेश्चन इज देयर, यू आर संजय संजना, you want to buy an air conditioner and need to know details like the
price, cooling capacity, warranty, electricity consumption. Okay, installation charges. Write an email to Sai Electricals email ID. अब सी यहाँ पे दिया है कि आपको एसी ख़रीदनी है और आप किसी डीलर को आप ये लेटर लिखो कि आपको सारी डिटेल्स भेजें। तो ये आप कई लोगों को भेज सकते हो ना। आपके शहर में 4-5 डीलर्स हैं एसी के, तो आप सबसे प्राइस पूछोगे ना कि जिसका आपको सूटेबल रहेगा आप उससे ले सकते हो। तो इसमें हम जो 2 की एड्रेस होगी, 2 के बाद हम CC BCC करके सबकी एड्रेस डाल देंगे और सबको अलग अलग ये ईमेल पहुंच जाएगा। ओके, सो ऑलरेडी द एड्रेस इज़ गिवन ओवर हेयर, वी कैन गो लाइक दिस। ओके, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे फ्रॉम में सपोज हेयर आई एम राइटिंग आई हैव टू परचेज द AC, तो मैंने अपना ईमेल आईडी लिखा। उसके बाद साई इलेक्ट्रिकल्स का इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं दिया रहता तो कुछ भी आप रैंडमली लिख सकते हो। आफ्टर द डेट, देन सब्जेक्ट इंक्वायरी फॉर परचेज ऑफ LG एयर कंडीशनर। ठीक है, तो अगले को बंदा समझ में आ गया कि हाँ मुझे इसकी इंक्वायरी भेजनी है। देन सर, I know that that person is male who is in charge of that dealership. Okay, sir, I am Sanjana from Gautam Nagar. I want to buy an LG air conditioner and you are the dealer of the same. Kindly provide me the following information. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में दिया है जस्ट आई हैव पेन डाउन दैट ओनली कि आई एम सो एंड मुझे LG की एयर कंडीशनर लेना है एंड मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन दीजिए। एंड इट इज़ ऑलरेडी मैंशन द क्वेश्चन की प्राइस, इंस्टॉलेशन एंड डिलीवरी चार्जेस, कूलिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वारंटी। जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहो यू कैन ऑल्सो डू दैट ऑल्सो, कि जैसे कि 1 टन की है या कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है, कितने स्टार्स होते हैं ना आजकल, 3 स्टार की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर। तो वॉट एवर यू कैन कीप ऑल एक्स्ट्रा डिटेल ऑल्सो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन में इतना दिया तो मैं इतना ही लिखूँ। एंड देन एक्सपेक्टिंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, रिगार्ड्स संजना। तो यहाँ पे संजना बुक में दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग संजना, अदरवाइज वी हैव टू राइट द फुल नेम, सरनेम। ओके, एंड रिगार्ड्स की जगह पे हम थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। तो लेटर लिखना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, so you can write the letter by yourself. Just see that the portion, the above 4 line, they should be in this format only. Okay, so now try to do some practice in this. Okay, hope you liked it and you understood well.